students. Today I will teach you how to do the journal entries. Okay, see how to do the journal entry, because in the exams journal entry you have to ask about the, you have to write the journal entry. So how to do the journal entry, all of you can see your example. ठीक है, example 39 is journal entry. How to do the journal entry? Now see, in journal entry I already told you that you have to prepare the profit and loss appropriation account in this chapter, and capital account. Capital account is prepared in two categories. One is fixed capital account, another is fluctuating capital account. Okay. But how you have to do the journal entry, I will tell you how the journal entry is done. So first you can see illustration 39. Illustration 39. See, all of you see illustration 39. Okay. So in this question you have to do the journal entry. Okay. In your example already here question is solved, but you see how to do the journal entry. First, illustration 39. Okay. You know how to prepare the profit and loss appropriation account. All of you know how to prepare the profit and loss appropriation account. But in profit and loss appropriation account, I already told you that first you have to brought down, but you have to brought down by profit and loss, because profit, what the profit is in the profit and loss appropriation, profit and loss account, you have to brought down in the profit and loss appropriation account. If there is an adjustment regarding the rent, so what you have to do? You minus the net, you minus the profit and net profit minus rent. What you do कि आप क्या करते हैं कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी बैलेंस होता है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप उसको ट्रांसफर करते हैं, लिखते हैं आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसमें से जो भी रेंट वगैरह, रेंट कोई लोन है, अगर उस पर इंटरेस्ट है आप उसको क्या करते हो, माइनस करते हो. तो सबसे पहले इसी वाले एग्जांपल में देखो कि आपके पास क्या गिवन है कि बिशन एंड मदन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 2018 contributing 80,000 and 60,000 respectively as their capital. So first, Bishan provided his personal office to the firm for business use and charge yearly rent of 1,200. तो फर्स्ट आपको सबसे पहले इसकी एंट्री करनी होगी है रेंट की. तो रेंट की एंट्री आप कैसे करोगे? यू विल राइट, ठीक है, डेट, यू कैन राइट डेट हियर. व्हाट इज द डेट इन योर चैप्टर 2019, प्रीवियस एजुकेटेड 2019. तो व्हाट यू विल राइट? रेंट प्रॉफिट, रेंट अकाउंट डेबिट. व्हाट यू विल राइट? रेंट अकाउंट debit to the partner who is getting the rent. तो रेंट किसको मिल रहा है? टू बिशन कैपिटल, टू BISHAN, बिशन कैपिटल. ओके, टू बिशन कैपिटल, और यू कैन राइट टू बिशन करंट अकाउंट, करंट account. Here is to Bishan capital and you can write to Bishan current account. This condition is first, जो पहले वाला है आप कब लिखोगे इसको? जब आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो? फिक्स कैपिटल अकाउंट. When you are preparing the नहीं, फर्स्ट वाला आप कब लिखोगे? जब आप क्या बना रहे हो? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. Then all the entries will transfer to the capital account. All the entries will transfer to the capital account. But when you are preparing
फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो ऑल द एंट्रीज विल पास थ्रू द करंट अकाउंट, सारी की सारी एंट्री किससे पास होंगी, करंट अकाउंट के थ्रू। ओके, एक टाइम और था कि जब आपके पास इफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, देन एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ इट इज करंट, यू आर प्रिपेयरिंग करंट अकाउंट, देन और रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। गॉट इट? जैसे कि आपके पास इसमें रेंट दे रखा है, कितना दे रखा है इसमें 1,20,000, दोनों में वही है, चाहे आप इधर ये आएगा इधर ये आएगा। गॉट इट? व्हाट यू विल राइट, बीइंग नरेशन, बीइंग रेंट पेड टू पार्टनर, गॉट इट? आपने रेंट अकाउंट डेबिट जिस पार्टनर जिसको रेंट पे कर रहे हो उस पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट वो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। वो क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यू आर प्रिपेयरिंग करंट अकाउंट, तो यू विल राइट पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट नेक्स्ट एंट्री जो आएगी, नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी इसके बच्चों, दिस रेंट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस रेंट को कहां करोगे आप ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों करोगे, बिकॉज रेंट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री आएगी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। being rent transfer to कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया कि हर जनरल एंट्री की दो एंट्रीज आएंगी, एक तो कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की, दूसरी एंट्री आएगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की। हर एंट्रीज की दो एंट्रीज आएंगी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की। गॉट इट? तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में देखो, मैंने फर्स्ट जनरल एंट्री का रेंट अकाउंट डेबिट टू विजन कैपिटल अकाउंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग करंट अकाउंट यू हैव टू राइट विजन करंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री है, देयर इज नो डेट, ये सेकंड एंट्री है। गॉट इट? इसके बाद अब आपने नेक्स्ट एंट्री करनी है। अब आपने क्या करनी है, नेक्स्ट एंट्री। तो नेक्स्ट एंट्री कौन सी करनी है आपने, कि जो आपने इस रेंट को आपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। अब इसकी प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो भी आपका जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करते हो, उसके लिए क्या एंट्री आती है, जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है, जब उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, उस समय कौन सी एंट्री आती है, यू हैव टू राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री आती है इसमें, यहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी नेट प्रॉफिट आपका, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो आपके पास जैसे कि इसमें कितने का था आपका रेंट से पहले प्रॉफिट कितने का था, 2,45,375, 2,45,375। इसमें से कितना माइनस कर दो, कितना रेंट था केवल आपको, रेंट आपको 1,20,000 माइनस 1,20,000। तो इसको माइनस करने के बाद कितना प्रॉफिट आया था आपका, 1,25,375, 1,25,375, 1,25,375।
375। ये कौन सा वाला प्रॉफिट है? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में माइनस करते हो जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिसको आपने डेबिट करना था, अगर नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट भाग मार दो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आपने, अगर नहीं है, अगर ये नहीं होता 1,20,000 नहीं होता तो ये दो एंट्रियां नहीं आती। बिकॉज अगर ये रेंट का अगर आपका पास 1,20,000 नहीं होता तो ये दो एंट्री नहीं आती। डायरेक्ट कौन सी एंट्री आती? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,45,375। बट इन दिस एग्जाम्पल देयर इज अ रेंट, तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने क्या करना है, पहले तो रेंट की एंट्री करनी है, रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो आपके पास प्रॉफिट गिवन है उसमें से रेंट माइनस करके इसको भाग दो। ओके, इतना समझ में आ गया? ये किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो ट्रांसफर की जाती है, जो एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, अब आप क्या प्रिपेयर करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आप क्या प्रिपेयर करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है? जो भी आपको जनरल एंट्री में जो भी उसके कैपिटल अकाउंट पे डेबिट होंगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन, ठीक है, ये खासकर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होता है। क्रेडिट साइड में कौन सी आती है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि इंटरेस्ट की एंट्री आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इस वाले एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या है आपके पास गिवन, व्हाट यू हैव टू ट्रांसफर। आपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट, कितना परसेंट पार्ट आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपने प्रॉफिट का जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का 20% पार्ट आपने कहां ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी? व्हाट यू विल राइट, क्या जनरल एंट्री होगी? उसके लिए आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। नेक्स्ट एंट्री होगी, अगर आपने जनरल रिजर्व में मनी ट्रांसफर करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। गॉट इट? अजीत कितना परसेंट प्रॉफिट आपने इसका 20% प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में। तो कितने रुपए आएंगे? इसका कितना भी आएगा आपके पास है 25,075 रुपीज, 25,075 रुपीज। ये मनी आपने क्या कहा? ट्रांसफर टू being 20% profit transfer to जनरल जनरल रिजर्व। ओके, तो ये वाली एंट्री कब आती है? जब आप प्रॉफिट का कुछ पार्ट कहां ट्रांसफर करते हो? जनरल रिजर्व में। तो आपने क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। गॉट इट? ये तो जनरल रिजर्व में मनी ट्रांसफर करने की एंट्री आएगी। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये तो फर्स्ट एंट्री ये है, सेकंड एंट्री ये है, फिर प्रॉफिट की एंट्री हो गई। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आप पहले कौन सी एंट्री करोगे कि आप किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बच्चे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है? इसमें क्रेडिट होता है। तो आपने क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन पार्टनर है? विशन एंड टू विशन कैपिटल अकाउंट टू विशन कैपिटल, और यू कैन राइट, ठीक है, और यू कैन राइट करंट अकाउंट और
करंट अकाउंट और टू दूसरा पार्टनर कौन सा है बच्चे, टू मदन कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने जिस पार्टनर को पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजन कैपिटल इफ यू आर प्रिपेयरिंग द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट ला रहे हो तो यू विल राइट टू करंट अकाउंट टू मदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जिसका भी जो भी कैपिटल अकाउंट बन रहा है उसको करंट अकाउंट के थ्रू करें तो करंट अकाउंट से आएगा, और अगर उससे आएगा तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे हुआ था बच्चे, विजन को उसको कितना इंटरेस्ट पे हुआ, एक को और 24,000 और 36,000। तो यू विल राइट हमेशा ये जो क्रेडिट साइड का 24,000 और 36,000, तो इनका टोटल कितना आएगा 60,000। ठीक है, 34 प्लस 26 you will get the interest on capital account debit to business capital account और to current account, उसी तरह to matter capital account और current account। अरे यहाँ पर नरेशन आएगा being interest paid to partner, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर। ये आपने नरेशन तो आपने हर क्वेश्चन में लिखना है, नरेशन आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन पे हर जनरल एंट्री में आपको नरेशन लिखना ही लिखना है, बिकॉज नरेशन के पेपर में मार्क्स करते हैं। आपको पहले ही बता रहा हूं मैं कि जब भी जनरल एंट्रीज आएगी तो जनरल एंट्रीज के मार्क्स होते हैं। अब ये मार्क्स इस तरीके से डिवाइड होते हैं कि आपने क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट जनरल, डोंट राइट हियर एंट्री। सबसे पहले आपने यहाँ क्या लिखना है जनरल, जनरल के बाद आपने फॉर्मेट बनाना है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ये बनेगा चाहे आपके पास डेट गिवन है नहीं है, आप डेट नहीं है गिवन तो आप कैसे 1 2 3 यू कैन राइट 4, आप उसको सीरियल ऑर्डर दे दो, बट आपको कॉलम बनाना ही बनाना है। नेक्स्ट पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा ही बनेगा, एलएफ का आप बनाओ या बनाओ, इट्स योर चॉइस। लेकिन अगर जैसे कि अगर आप पेपर में आ रहा था फॉर्मेट आप बनाओ डेबिट एंड क्रेडिट। नरेशन प्रत्येक क्वेश्चन की नरेशन होगी, आप भी शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी जो भी आपके कुछ भी क्या मतलब जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपको एंट्री में गिवन, जो आप एंट्री में कर रहे हो आप उसी को क्या कर दो यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि इसमें जनरल एंट्री में याद रखना, जनरल एंट्री प्रत्येक आप तो हर पेपर में जनरल एंट्री के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल एंट्री का, इसलिए मैंने आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया, कैपिटल अकाउंट बताया, अब मैं उसकी जनरल एंट्री बता रहा हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजन कैपिटल अकाउंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग करंट अकाउंट और करंट अकाउंट टू मदर और करंट अकाउंट 36 24 यू विल गेट 60,000। उसी तरह अब इसकी नेक्स्ट एंट्री होगी फोर्थ फिफ्थ, अब उसी तरह इसकी नेक्स्ट एंट्री होगी ट्रांसफर करने की। तो आपने नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने कहां ट्रांसफर किया बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां किया आपने इसको ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपने क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना कितनी मनी आपने प्रॉफिट एंड लॉस आपने इसको कहां ट्रांसफर कर दिया, टू इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहां पर जरा नहीं है, आपने एंट्री को थोड़ा सा आप इसको ऐसे लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट पे किया था आपने, 60,000 क्योंकि इस मनी को आपने पहले तो आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू करंट अकाउंट। अब इस जो ये इंटरेस्ट को आपने कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आप डेबिट साइड में लिख लो। तो आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। उसके बाद अगर आप क्या पे करते हो, कोई पार्टनर किसी पार्टनर को अगर सैलरी पे करते हो, जैसे कि मैं बुक में थोड़ा ऊपर नीचे जनरल एंट्री है, मैंने पहले इंटरेस्ट की देखी, बुक में पहले किसकी एंट्री है, सैलरी वगैरह की एंट्री है, तो आप उसको चेक कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऊपर नीचे हो सकता है उसमें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एंट्री है, आपने पार्टनर्स को सैलरी पे करनी है, आपने पार्टनर्स को क्या पे करनी है, सैलरी। अगर आपने पार्टनर्स को सैलरी पे करनी है, उसके लिए क्या जनरल एंट्री आएंगी, अगर आपने सैलरी पे करनी है उसके लिए कौन सी जनरल एंट्री आएगी, मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि आपके पास मतलब इस बार एग्जाम्पल में क्या देगा कि यू हैव टू पे द सैलरी, आपने क्या पे करनी है, सैलरी। तो आप सैलरी पे करोगे तो सैलरी किसको पे हो रही है, दोनों पार्टनर को पे हो रही है, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, आप पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, 6 के बाद 5 के 6 के बाद आएगी सैलरी, ये पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू विजन कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अप टू भूषण मदन टू मदन कैपिटल और करंट अकाउंट। इफ इट इज कैपिटल अकाउंट, राइट कैपिटल अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग बनता है तो करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, करंट अकाउंट। तो कितनी कितनी सैलरी ये माने आप बुक में देखना, ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, मेरे ख्याल से मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा देखने में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हुई, वो ऊपर नीचे हो गई, आपको चेक कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9,600, यहाँ पर लिखो 9,600, और दूसरे पर कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7,200, 7,200, ठीक है। और उसका टोटल लगे कितना हो जाएगा, तो 16,800, 16,800, इसको आप ऐसे कर लो, ठीक है। उसी तरह आप लिखोगे 16,800 और यहाँ लिखो 16,800, मैंने थोड़ा कंफ्यूजन करके ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,800 और विजन कैपिटल टू विजन कैपिटल